everyone. My name is Shruti Jain and I am the faculty of International Marketing in your college. In the last lecture, we have discussed how it is very important for a marketer who wants to start its business at international level to know what is the market, international market selection and segmentation. In this lecture, we will discuss the factors related to in the previous lecture we have also covered your firm related factor. Now in this lecture we will be covering your market related factors and other factors and problem associated with your selection process. So first of all, I wish and pray that all you are doing well at your home and taking care of yourself and your loved one. Please do not step out of your home, and if you in emergency, if you want to go out of your home, please do take care proper precaution and do take care of yourself and your loved one. Now let's start what is international marketing selection. First of all, let's cover your important topic, marketing positioning. What is marketing positioning? Marketing positioning means that giving your audience or you giving your customer the reason to purchase your product. Like if I want to start a product, I am a marketer, I should give my customers a reason to start to buy my product. If my audience is not convinced me with my product, they will buy the product for the one time, but they will not continuously buy that product. They will not have that faith in that product. So first of all, positioning means giving your audience the reason to buy your product. Now let's start what are the factors related to your market related factors and the other factors which are important. Basically I can cover we can divide your market related factor into two parts. First is your general factors which are applicable or for all the companies, or which are the general factors. We can also say that these are the macro factors, and on the other part we can say specific factors. Specific factors are those factors which are related to a particular industry or particular country. If I'm talking about, so more so that is it is related to your micro factors. And now we will also cover your problem associated with that. So फर्स्ट आर द मार्केट सिलेक्शन. मार्केट सिलेक्शन में हमारे किस पे के बेसिस पे किया था हमने? फर्म रिलेटेड फैक्टर्स विच वी हैव कवर्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर. नाउ इन दिस वी विल बी कवरिंग योर मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स. So market selection is based on through evaluation of different market. Like if I am talking about if I'm a marketer and I want to start my business at international level, and I am considering different countries like US, China, France, Britain. I am considering all these companies to start my business. So market selection is based on evaluation of different market. I am evaluating a different countries in which I want to start my business with reference to well defined criteria. Obviously if I am choosing certain country, if I am choosing my example China, so I should be having a strong reason to choose China as my target market. Like if I am producing goods, like मैं बूढ़ों के कोई गुड बना रही हूँ, बूढ़ों के like कोई ओल्ड एज के कोई क्रीम बना रही हूँ, या फिर मैं ऑर्थो से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, ऑब्वियसली आई विल चूज चाइना बिकॉज दे आर हैविंग अ हाई पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल. इन द लार्जर जो पोर्शन है पॉपुलेशन का इन चाइना में, वो मोस्ट ऑफ द बूढ़े पीपल का पॉपुलेशन है. सो if I am a marketer, I should have a well defined criteria before choosing the market, and criteria and the given company resources and activity. And if I am choosing my China as my target market, I should have enough money and I should have enough human resources. I should know my human resource, know my employees, know how to deal with China people. I should know like how to deal with China, what are the cultures of China, what are the behavior of the China, like what are the culture activities of China. So I should be ready for to face all the consequences if I want to work with China. So in this case marketing research become वेरी नेसेसरी. इफ सो इन दिस केस अगर मैं काम करना चाहती हूँ तो मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. दीज आर द मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स.
So, like I have told you earlier, these are divided into two factors. First is your general factors. The general factors are the factors which are applicable for everyone, like economical factors कि इकोनॉमी क्या होगी, जीडीपी क्या है, कि वहाँ पे आपका जीडीपी कितना अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी है, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस कंट्री की बात कर रहे हैं. सो उस कंट्री का कितना जीडीपी चल रहा है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है उस कंट्री की नहीं है, या वहाँ पे उसके ऊपर कितना ज़्यादा इंडेप्थनेस है, कितना ज़्यादा उधार लिया हुआ है उस कंट्री में. लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस करंट सिनेरियो, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द जो हमारे मार्केटर्स है, दे विल नॉट प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज today India is facing a various I can say a disastrous economical cycle, because our GDP is continuously falling. We are falling at very high level and we are not having economic stability at all right now. So no marketer will be investing right now in India. So I should be knowing the economic policy, GDP, indebtedness की कितना उधार लिया हुआ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी की कंट्री की पॉलिसीज़ क्या है, आर दे आर लिबराइज्ड, क्या उनके पास लोगों को मतलब लिबराइज है, हर चीज़ में आपको कानून नहीं निकालना या हर चीज़ में आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है. इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ टॉकिंग अबाउट, लाइक अगर मैं बात करती हूँ आपकी चाइना में क्या होता है, यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर every action which you are doing, because they are having a very restrictive economical policy. If I am talking about US, they are not having, they are very liberalized economy. So depend करता है कि इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी चल रही है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या फिर अपने ग्रोथ के ऊपर कितना ज़्यादा गवर्नमेंट का कितना खर्चा है, या वहाँ पे वो गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रेट है. लाइक अगर मैं दुबई की बात करती हूँ तो वहाँ पे ज़ीरो टैक्स है कि आप अपना कमाइए, गवर्नमेंट को आपसे पैसे से कोई भी ज़रूरत नहीं है. मॉनेटरी पॉलिसी कि कितना ज़्यादा वहाँ मार्केट में सरप्लस अवेलेबल है आपके लिए, कि वहाँ पे कितना मार्केट में पैसा अवेलेबल है. सो दीज आर योर इकोनॉमिकल फैक्टर्स. हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हम आपका बिजनेस रेगुलेशन. कितनी वहाँ पे बिजनेस रेगुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की वही जब मैंने बात करी थी, लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया में, you need to start for a liquor business. If you want to start a liquor business in India, you need to take a proper licensing from the government. But if you are starting your business in US, you don't need to take any license permission from the government for the same. So these are the factors which are general factors जो हमारी कंट्री पे रिलेटेड होते हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रोथ पे कितनी है, टेक ओवर्स कितने हैं, यहाँ पे करेंसी में कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी वहाँ पे स्टेबल करेंसी है या नहीं है. लाइक इंडिया की करेंसी है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, इंडिया से ज़्यादा. अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि कभी उनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कभी घटता है, तो वो क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स वहाँ पे कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, एथनिक फैक्टर्स वहाँ पे कितने अच्छे हैं. एथनिक फैक्टर मतलब वहाँ पे हारमनी है या नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं नहीं है, वहाँ पे एथिक्स फॉलो किए जा रहे हैं नहीं करे जा रहे हैं. सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं आपके. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं. ब्यूरोक्रेसी मीन्स द प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो किए जाते हैं नहीं किए जाते, या कोई गुंडा राज तो नहीं है, प्रोसीजर क्या है वहाँ पे. ऑल दीज आर योर जनरल फैक्टर विच यू नीड टू कंसिडर. मतलब ये हर किसी पे आपको जनरली कंसिडर करने ही पड़ेंगे. ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री की बात करनी होगी खाली बस इस पे ही फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं. ये अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको ये सारे फैक्टर जनरली सब पे देखने ही पड़ेंगे. नाउ कमिंग टू योर स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलेटेड हुआ, जैसे जो अगर मेरे को पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंट्री पे देखने हैं, अगर मैं वहाँ की बात कर रही हूँ तो मुझे उसी कंट्री की चीज़ें देखनी है. जो ट्रेंड्स इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, वहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है वहाँ पे. अगर मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी उस कंट्री में इतना प्रोडक्शन हो रहा है गुड का, डोमेस्टिक में वहाँ पे ऑलरेडी उनकी जो कंपनी एग्जिस्टेंस कंपनी है वो इतना प्रोड्यूस कर रही है या कितना प्रोड्यूस कर रही है. ऑब्वियसली अगर मुझे उनकी खुद की कंपनियाँ इतना प्रोड्यूस कर रही है तो आप इसका बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे. एंड कंजप्शन की वहाँ पे कितना कंजप्शन रेट है. लाइक इंडिया की बात करें, इंडिया में कितना कंजप्शन रेट है. एंड एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर ऑफ द प्रोडक्ट कंसर्न, कि वहाँ पे अगर मैं उस कंट्री में जाके बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो वहाँ पे कितनी मेरी फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है. सेकेंड पॉइंट आता है
ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड एस्टिमेट ऑफ द फॉर द फ्यूचर, कि कितना ज़्यादा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कितना ट्रेंड है उस कंट्री का। नेचर ऑफ कंपटीशन, उस कंट्री में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, क्या मेरे को वहाँ पे सिर्फ अपना डोमेस्टिक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, या फिर मुझे वहाँ पे और भी कंट्रीज़ के वहाँ पे मेरे साथ कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल होंगे, कि वहाँ पे कितना कॉम्पिटिशन है, क्या वो मेरे लिए सेचुरेटेड मार्केट है, क्या वहाँ पे मेरा काम करना वर्थ इट है या नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस कंट्री की, और गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशन है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्टिकुलर आपके, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस रेलिवेंट इंडस्ट्री के लिए। लाइक अब अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी कोई पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री है आपको जिसमें बहुत ज़्यादा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत बेकार है, तो आपका तो वो काम ही नहीं करेगा, वो कंट्री आपके लिए सुटेबल ही नहीं है अनटिल अनलेस आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा अच्छा कर दो। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल वहाँ पे उस कंट्री का कैसा है उस इंडस्ट्री के लिए, जो अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो, क्या वहाँ पे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है नहीं मिलता है। ट्रेड प्रैक्टिसेस और कस्टम कैसा है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो काम करने का लोगों का तरीका है, कस्टम जो पॉलिसी है वो कैसी है। कल्चरल फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, क्या नीड है उनकी, क्या एक्चुअल उनकी डिमांड है। कस्टमर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइक कि वो सारा क्रेडिट पे काम सामान लेना पसंद करते हैं या फिर आपका कैश में पेमेंट देना पसंद करते हैं। सो अदर फैक्टर्स क्या थे, जो अदर फैक्टर्स हमने पढ़े थे फर्स्ट इन द लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था आपका फर्म रिलेटेड फैक्टर। इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड योर मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स एंड नाउ वी आर टेकिंग योर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस कितनी है, कि पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कि आपको जैसा प्रोडक्ट, लाइक अगर आप अरेबिया कंट्री की बात करो या फिर आप इस्लामिक कंट्री की बात करो, वहाँ पे आप अपना अल्कोहल के प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, कि पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस तो कुछ नहीं है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है कुछ गवर्नमेंट की, या प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कि लाइक उस कंट्री के लोग हैं उनको इतना समझ में नहीं आता, तो मुझे क्या उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, लाइक अगर मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो मुझे वो पर्टिकुलर लैंग्वेज उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। लाइक चाइना का अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं वहाँ पे कुछ चीज़ भी प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी, ऑब्वियसली आई नीड टू प्रोवाइड एवरीथिंग इन चाइनीज़ लैंग्वेज, बिकॉज दे वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं चाइना अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करते हैं। डिस्टेंट लोकेशन, कितने ज़्यादा लोकेशन पे हमारे को अवेलेबल कराना है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, मैंने वो मॉल्स में अवेलेबल करा दिया, बट क्या वो कस्टमर्स वहाँ पे ले पा रहे हैं उसको चीज़ को या नहीं ले पा रहे। बिजनेस कम्युनिटी कैसी है वहाँ पे आपकी। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएशन विद द सिलेक्शन से क्या होता है, एवरी कंट्री हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग का, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी के गोल्स अलग हैं, हर किसी का, जैसे अब मैं बात करती हूँ इंडिया में लोगों को बहुत डिले, बहुत आराम से काम करना प्रेफर करते हैं, बट हम फॉरेन के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, दे लव टू बी ऑन द टाइम, मतलब उनको ये है कि इतने बजे का टाइम है तो पंक्चुअल होना है, बट इंडिया में क्या है आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया तो बहुत नॉर्मल है। सो यही चीज़ें हमारे डिफरेंट काम करने का तरीका होता है। द प्रॉब्लम्स अभी यहाँ पढ़ेंगे, द ग्लोबल मार्केट इज मेड अप ऑफ वेल अवेयर, इतने इंडिपेंडेंट 200 हमारे इंडिपेंडेंट नेशंस होते हैं विद देयर ओन डिस्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबकी काम करने का तरीका अलग होता है, वही हमने जो पहले कवर किया था। द कंपनी शुड हैव टू कंसीडर वेरियस पॉइंट बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केटिंग, लाइक सोशल कल्चर कैसा है वहाँ का, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, और एनवायरनमेंट कैसा है। Moreover, the company's resources may not permit the operation into a large number of countries. कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास रिसोर्सेज ही नहीं है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, कि अगर वो यूएस में जाके काम करना चाहती है और उसके पास इतना पैसा ही नहीं है तो वो वहाँ के लोगों को अफोर्ड कैसे करेगी, वहाँ के लोगों को पैसे ही कैसे दे पाएगी। कंपनी विच वॉन्ट टू एंटर इन टू मार्केट शुड बी सिस्टमैटिकली, ऑब्वियसली इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस एट इंटरनेशनल, आई शुड बी फॉलोइंग एवरीथिंग एट वेरी सिस्टमैटिक मैनर, बिकॉज एवरी कंट्री हैव देयर। अब मैं बात करती हूँ इंडिया में क्या है, चलो ठीक है लीनियंट हो गया, हाँ चलो चलता है, इमोशनली हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट अगर फॉरेन की बात करते हैं उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, यू नीड टू प्रॉपरली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, अदरवाइज आपको पर सू किया जाएगा, आपको लोगों का ट्रस्ट आपसे उठ जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद योर सिलेक्शन। सो होप आप सबको सब समझ में आ गया होगा। अब और आपकी कोई डाउट रहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कवर करेंगे। सो वी हैव कवर्ड योर व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सिलेक्शन, इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्शन और प्रॉब्लम एसोसिएटेड उस सिलेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग योर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की क्या क्या प्रोसेस का। थैंक यू।